is for our classification of alkyl halides. Of classification on the basis of number of halogen atoms present in the compound. When there is only one halogen atom, we call those compounds as monoalkyl halides. Similarly, when there are two halogen atoms, we call them dihaloalkyl. Monoalkyl halides, dihaloalkanes आप लिख सकते हैं या dialkyl halides. In the same way, trialkyl halides containing three halogen atoms. So this is one classification based on the number of halogen atoms present in the compound. For example, there is compound CH3Cl. This compound contains only one halogen, so it is monoalkyl halide, or you may call it monohaloalkane. In the same way, there is compound CH2Cl, single bond CH2Cl. This is dihaloalkane. There is another compound CH3CHClCl. This compound is also dihaloalkane because it also contains. But there is a difference between these two compounds. In this compound, two halogen atoms are present on the same carbon, whereas in this compound, two halogen atoms are present on two different carbon atoms. And these two different carbon atoms are in the vicinity of each other, isn't it? They are in the. So this alkyl halide, this is a new point. Yesterday we didn't discuss this thing. This alkyl halide, while there are two halogen atoms on same carbon atom, it is called a gym halide. Such an alkyl halide is called as, remember this thing, such an alkyl halide is called as gym halide, containing two halogens on the same carbon. And when there are two halogens present on two different carbon atoms, but they are in the vicinity of each other, that is on position 1 and 2, they are called as vicinal halides. Vicinal halides because they are in the vicinity of each other. So this was one classification. We have discussed this one yesterday. Another classification is on the hybridization. Classification based on the hybridization. Yes, on the hybridization of carbon to which halogen is attached. To which halogen is, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन एटम है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, उस बुनियाद पर भी हम अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं. तो उस एतबार से एक टाइप इनका है when halogen atom is present on carbon having sp3 hybridization. I have told you yesterday that carbon can undergo sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization. And you know, when there are only single bonds in carbon, when a carbon forms only single bonds, then the hybridization is sp3. When carbon has made a pi bond, that is double bond, then sp2 hybridization. If a carbon has made two pi bonds, remember this thing, two pi bonds, that is a triple bond. There are two pi bonds, then that is sp hybridization. That is so on the base of hybridization of carbon, we can classify alkyl halides into three groups. क्योंकि कार्बन की तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए तीन ही तरह के अल्काइल हैलाइड्स होंगे. एक वो अल्काइल हैलाइड जिनमें कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3. दूसरा कौन होगा जहां कार्बन पे sp2 होगी, और तीसरा कौन होगा, ठीक है ना. अब ये जो sp3 वाले हैं ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो हैं,
ये हमारे पास तीन तरह के हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स। नंबर वन टाइप है इनका मोनो अल्काइल हेलाइड्स। मोनो अल्काइल हेलाइड्स, मोनो अल्काइल हेलाइड्स containing only single bonds, containing only, यानी वो अल्काइल हेलाइड जिनमें सिर्फ क्या है, सिंगल, और मोनो अल्काइल हेलाइड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंपाउंड था, कल मैंने आपको बताया ही, CH3Cl। इस कंपाउंड में जो कार्बन है जिस पर हेलोजन है, इस कार्बन ने चूंकि चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसी तरह से एक और कंपाउंड है CH3CH2Cl। यहां पर इस कार्बन पे हेलोजन है, इस कार्बन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3। एक और एग्जांपल लिखी थी मैंने कल, CH3CCH3HCl। इस कंपाउंड में देखिए कार्बन ने चार सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसी कार्बन पे हेलोजन है ना, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इस वक्त क्या है, sp3। एक और एग्जांपल लिखी थी हमने, CH3CH3CH3Cl। इस बीच वाले कार्बन पे हेलोजन है ना, इन पे भी सिंगल बॉन्ड है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, मगर हमें इनके साथ वास्ता इस कार्बन के साथ है जिस कार्बन पे हेलोजन है। अब देख लीजिए, इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब हुआ इसने भी क्या किया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैविंग हेलोजन ऑन इट, है ना। तो सारे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं सारे। और आपने कल देख लिया ये वाले जो है, इतनी एग्जांपल्स मैंने क्यों कोट की, वो इसलिए कि ये वाला और ये वाला जो है, हम इन्हें प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन एटम जो है वो प्राइमरी कार्बन पे है। किस पे है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में। प्राइमरी कार्बन उसको कहते हैं विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू वन कार्बन और नन, इन कोई ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच होगा या किसी के साथ नहीं, अकेले होगा। जैसे ये अकेले है, इसके साथ कोई कार्बन अटैच, तो ये प्राइमरी कार्बन है। ये क्या है, ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है ना, इसका डायरेक्ट बॉन्ड सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है, इसलिए ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है। तो इन दोनों कंपाउंडों में हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन पे है, इसीलिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया, अब ये वाला देख लीजिए, इसमें कार्बन पे, इस कार्बन पे क्लोरीन है ना। अब ये कार्बन जो है इसने डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है कितने कार्बन के साथ, दो। जब एक कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो सेकेंडरी कार्बन है ना। इस वक्त हेलोजन किस पे है, सेकेंडरी कार्बन पे, इसलिए हम इस अल्काइल हैलाइड को क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे। और ये वाला देख लीजिए, है ना, यहां पर कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, 3 कार्बन के साथ, तो ये टेरिशरी अल्काइल हैलाइड है। हमारे पास क्वाaternary कार्बन भी होता है इस तरह से। ये कार्बन जो है मैं जहां बना रहा हूं, ये कौन सा कार्बन है, क्वाaternary कार्बन। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली 4 कार्बन के साथ अटैच है। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए क्वाaternary कार्बन जो है इसके साथ अब क्लोरीन अटैच या हेलोजन अटैच नहीं होगा, इसलिए हमारे पास क्वाaternary अल्काइल हैलाइड्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जो मोनो अल्काइल हैलाइड्स हैं, मोनो अल्काइल जिनमें कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, ये 3 तरह के, कितने तरह के, कौन कौन से, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड ये अल्काइल हैलाइड जो है ना, इन्हें हम सिंपली अल्काइल हैलाइड्स ही कहते हैं। व्हाट दे आर कॉल्ड एज, मैंने कल भी कहा था हमारा यूनिट जो है अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ये जो वर्ड अल्काइल हैलाइड है, फिर से नोट करके रखिए, ये जो वर्ड अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में सिर्फ यही कंपाउंड आते हैं, कौन से, मोनो हेलो अल्केन्स। कौन से, मोनो हेलो अल्केन्स। हम इन्हीं के लिए नाम अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं।
थो याद गुरु क्या इलिस वनो ना अल्काइल हेलाइड हम कमी कंपाउंड गई यम आख हेलोजन आटम है फोर एस अल्केन अल्कीन अल्काइन के अल्केन तब अल्काइल हेल मानो अल्काइल हेलाइड्स यम छ एमने वना छ सिंपली अल्काइल हेलाइड्स ठीक है ना। अच्छा हम पढ़ रहे हैं कौन से हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पे है ना। तो यहाँ पर जो कार्बन जिस पर हेलोजन है उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है और आप ये जानते हैं जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है sp3 है ना। अब ये भी मुमकिन है ना ये कार्बन जिसपे सिंगल बॉन्ड है अब यहाँ पर कार्बन है इसने सारी सिंगल बॉन्ड बनाई ये कार्बन किसी दूसरे ऐसे कार्बन को अटैच हो सकता है जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा। अगर हम इस कार्बन पे हेलोजन अटैच करेंगे अगर हम इस कार्बन पे हेलोजन अटैच करेंगे इसका मतलब हुआ ना कि यहां पर कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहां क्या है इस पे डबल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड है इसका मतलब ये हो इन कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है इनके साथ हमारा वास्ता भी नहीं है हमें उस कार्बन के साथ गरज है जिस पर हेलोजन एटम अटैच है। तो इस तरह के जो अल्काइल हेलाइड्स होंगे इन्हें हम एलाइल हेलाइड्स कहते हैं। एक हो गया ना अल्काइल हेलाइड दूसरा टाइप इसका है एलाइल हेलाइड्स देखिए दूसरा टाइप कौन सा है एलाइल हेलाइड। एलाइल हेलाइड जो हैं इनमें भी हेलोजन किस पे होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे मगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच खुद होता है किसके साथ ऐसे कार्बन के साथ जिसने डबल बॉन्ड बनाया है ठीक है ना। when sp3 hybridized carbon is attached to another carbon having a double bond and halogen is attached to sp3 hybridized carbon is attached to sp3 hybridized carbon. Such compounds are called as allyl halides. Such compounds are called as allyl halides. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अल्काइल हेलाइड या क्या को एलाइल हेलाइड सो एलाइल क्लोराइड ही कितने होने अगर इस पर कंपाउंड है तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl ये कंपाउंड छ ये गो एलाइल क्लोराइड ये गो नाव हकत बदल बन और वो क्या एलाइल कंपाउंड एलाइल क्लोराइड आज बन प्रोपीन छ 8 2 3 फंक्शनल ग्रुप छ डबल बॉन्ड क्लोरीन छ मान नामन कलिस सबस छ है ना इसे बन यथ कंपाउंड्स नाव 3 क्लोरो प्रोप 1 इन 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। तो ये क्या है एलाइल हेलाइड क्यों यहां पर कार्बन जिसमें क्लोरीन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और जिस कार्बन के साथ ये अटैच है वो डबल बॉन्ड पे है ठीक है ना। इसी तरह से इसका एक और ग्रुप है पता नहीं इसके 3 टाइप्स हैं। तीसरा टाइप है इसका बेंजाइल हेलाइड। तीसरा टाइप कौन है यहां पे लिखूंगा बेंजाइल आसानी से समझे बेंजाइल हेलाइड बेंजाइल हेलाइड जो ना अथ मज त क्या तथ कार्बनस हेलोजन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन मगर होर तथ C डबल बॉन्ड C अटैच होर बेंजीन रिंग अटैच कैसे अटैच ये कार्बन सब बदल लिख पड़े बेंजीन रिंग अगर ये अटैच CH2 तथ अटैच Cl कित पे कंपाउंड यू
इस कंपाउंड ये गो बेंजाइल हेलाइड, क्या गो ये कंपाउंड कौन है, क्यों? तो आप देखिए जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है, निम कार्बन बनो 4 सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड गोस ना बेंजीन गोस ना क्लोरीन जो गोस ना 2 हेडन गो इम कार्बन बनो चुशवे सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इमस क्या गमस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तेल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे सोन हैलोजन, मगर पान का कार्बन अटैच यथ कार्बन क्लोरीन अटैच सह कत पान अटैच बेंजीन। तुझुआ बेंजीन में C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C छना गो अत बेंजीन ग्रुप अटैच आसे तमिस बनिया ये बेंजाइल हेलाइड, क्या बनिया वो बह लगो कंपाउंड ये तन समझान खतर सब ब्या कंपाउंड बेंजीन अटैच CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl यह कंपाउंड अत बेंजीन अत क्लोरीन अटैच कत sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मगर ये कार्बन डायरेक्टली अटैच बेंजीन रिंग्स माच, इसलिए ये कंपाउंड बेंजाइल हेलाइड। गो बेंजाइल हेलाइड आसन खतर क्या कंडीशन, बेंजाइल आसन खतर क्या कंडीशन, ये एलगेसी सो बेंजाइल ग्रुप कार्बन युस इन यथ कार्बनस हैलोजन CH2 हैलोजन सो गए डायरेक्टली बेंजीन रिंग्स अटैच। तवे करान तुम बुत इंशाल्लाह केमिस्ट्री मज तवे करान अगर इत पे ग्रुप इत पे वन ये ग्रुप बेंजीन योर क्या CH2 छना यह वन बेंजाइल ग्रुप, क्या वन अगर क्लोरीन गो बेंजाइल क्लोराइड ये कंपाउंड, अगर फ्लोरीन अगर OH ये गो बेंजाइल अल्कोहल, ते क्या वनोस बेंजाइल गो ग्रुप बेंजाइल ग्रुप, क्या ब्या गो बेंजल ग्रुप, ब्या गो बेंजो ग्रुप, हम त्रे बेंजाइल बेंजल बेंजो बेंजाइल अगर CH2 तो गो बेंजाइल, अगर CH होता है तो गो बेंजल, अगर C होता है तो गो बेंजो, ठीक है ना। आगे जाके इसके साथ वास्ता पढ़ने वाला है। तो यहां पर हम क्या कह रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ alkyl halides or halogen compounds on the basis of hybridization of the carbon। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में कौन सी होती है, एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp3 वाले जो कंपाउंड से ये भी 3 तरह के हैं, आप ये कितने के कौन कौन से, एक वो जिनमें सिर्फ अल्काइल हेलाइड्स आते हैं, यानी जब अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन लाएंगे और वहां पर कार्बन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और वो कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो उस एतबार से ये बनते हैं अल्काइल हेलाइड्स, और इसके अपने 3 टाइप हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड। दूसरा हो गया एलाइल हेलाइड्स। एलाइल हेलाइड वो हो गए जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हैलोजन होगा, मगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जो अटैच होगा उसने डबल बॉन्ड बनाया होगा, उसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं की होगी। इसी तरह से बेंजाइल हेलाइड है जिसमें ये कार्बन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है उस पे हैलोजन होगा, मगर वो ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ, बेंजाइल ग्रुप के साथ, बेंजीन के साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ। इसे बेंजाइल हेलाइड कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले जो हैं 3 तरह के हैं, अल्काइल हेलाइड्स, एलाइल हेलाइड्स, बेंजाइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स, एलाइल हेलाइड्स, बेंजाइल हेलाइड्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसका दूसरा टाइप, दैट इज वायर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप लिखिए कंपाउंड्स इन विच क्लोरीन इज अटैच्ड टू compounds in which chlorine या halogen is attached to carbon having sp2 hybridization। ये दूसरा किस्म है इसका, halogen is attached to carbon having sp2 hybridization, जहां पर क्लोरीन या हैलोजन उस कार्बन पे होगा
जिसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन में होती है? जिसने डबल बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, जरा देख लीजिए, ये कंपाउंड आप जानते हैं ये कौन सा कंपाउंड है? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बेंजीन है ना। बेंजीन में हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन ने यहां बनाया है ना डबल बॉन्ड, इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है, इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है, इसने यहां डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ का कार्बन यहां से डबल बॉन्ड बनाया है ना, इसने यहां से डबल बॉन्ड, यानी 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन इसका क्या करते हैं? तो आप देखिए, जब इसका ये कार्बन है यहाँ पर CH, अगर हम H रिमूव करेंगे, H के बदले हेलोजन लाएंगे, क्या लाएंगे? तो ये हेलोजन इस वक्त किस कार्बन को अटैच है? जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, या आप ये कहेंगे जिसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है, ठीक है ना। चलो इस पे हम अटैच नहीं करते, मैं यहां पर अटैच करता हूं, यहां पर हेलोजन। आप देख लीजिए, ये हेलोजन इस कार्बन पे अटैच है। क्या इस कार्बन ने डबल बॉन्ड नहीं बनाया है? बनाया है ना। आप यहां पर अटैच कीजिए, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ना, आप यहां पर अटैच कीजिए, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप बेंजीन में किसी भी कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच करते हैं तो वहां पर हेलोजन अटैच होता है टू ए कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब हम पहले से जानते हैं कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन होता है इट मींस वहां पर कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? इस तरह से ये कंपाउंड जो बनता है ये इस टाइप में आ रहा है ना। तो ये कंपाउंड जो हैं, कौन से कंपाउंड? जहां हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है किसको? बेंजीन रिंग को। किसको? इनको हम कहते हैं एराइल हेलाइड्स। क्या कहते हैं? तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये जो हेलोजन एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। देयर आर, एक टाइप है ये जिन्हें हम क्या कहते हैं? एराइल हेलाइड्स। आप समझ रहे हैं? अब देखो ओवरऑल में जब आप देखेंगे ना, आपको आएगा अल्काइल हेलाइड, एलाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड। अब चौथा है एराइल हेलाइड। चौथा क्या है? एराइल हेलाइड में क्या होता है? हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड, yes, directly attached to benzene ring, to benzene ring। तो हम पहले से जानते हैं in benzene ring all the carbons are sp2 hybridized, such compounds are called as aryl halides। So aryl halide is a type of halogen derivative where halogens attached to sp2 hybridized carbon, ठीक है ना। इसका एक और है जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि कार्बन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये देख लीजिए ना, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C Cl, ये एलाइल हेलाइड है ना। ये क्या है? क्यों? यहां पर कार्बन अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को और वो कार्बन अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन को। अब अगर इसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन है, किस पे? ये बेंजीन नहीं है, ये अल्कीन है, ईथीन है। सपोज ईथीन में डबल बॉन्ड होता है और वहां कार्बन पे डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा हेलोजन, तो कंपाउंड बन गया ना, हेलोजन डेरिवेटिव बन गया ना। तो ये दूसरा टाइप बनेगा। फिर ये क्या बनेगा? इसको हम एराइल हेलाइड नहीं कहते हैं, इन्हें हम वीनाइल हेलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा टाइप कौन है? वीनाइल हेलाइड्स। कौन सा टाइप? तो वीनाइल हेलाइड में क्या होता है? हेलोजन atom is attached to a double bonded carbon atom, and we know double bonded carbon atom is sp2 hybridized। for example CH2 double bond CH single bond Cl, है ना। यहां पर क्लोरीन अटैच है किसके साथ? एक ऐसे कार्बन के साथ जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, जिसने। इसलिए ये कंपाउंड जो है ये वीनाइल हेलाइड है। इसको हम नाम दे सकते हैं वीनाइल क्लोराइड। क्या नाम दे सकते हैं? वीनाइल। इसीलिए आपने पिछली दफा स्कूल में पढ़ा है, अगर आप वहां थे, पॉलीमर्स में पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ा है ना, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसी विनाइल क्लोराइड से बनता है।
किससे बनता है? तो विनाइल क्लोराइड्स कौन से हैं? जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है हैलोजन एटम, ठीक है ना। तो ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसीलिए आ गया कि इसमें इस दूसरे टाइप में। तो ये जो दूसरा टाइप है, अब इसके कितने किस्म है? और दो। जहां पर आप समझ रहे हैं, जहां पर कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक, जब हैलोजन डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग को, क्योंकि बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर ओपन चेन कंपाउंड में होगा और वहां पर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हैलोजन है, उन्हें क्या कहते हैं हम? तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन जो हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं, देयर आर टू टाइप्स, एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स एंड, अब तीसरा टाइप है कौन सा? when halogen attached to carbon having sp hybridization, when halogen is attached to carbon having sp hybridization, तो आप ये भी जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त होती है जब कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा, है ना। इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। आप एग्जांपल में लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C, X के बदले आप क्लोरीन ले सकते हैं। तो ये कंपाउंड जो है, यहां पर कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो इसी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हमारा हैलोजन एटम अटैच है। इस तरह से ये आएगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला। इनको हम कहते हैं अल्किनाइल। क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज अल्किनाइल हैलाइड्स। क्या कहते हैं हम? दीज आर कॉल्ड एज अल्किन आप समझ रहे? सॉरी, अल्किनी, अल्काइनाइल हैलाइड्स, सॉरी, they are called as alkynyl हैलाइड्स। अल्काइन है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड क्या है? अल्काइल, इथाइनाइल क्लोराइड। हमारा ये कंपाउंड क्या है? इथाइनाइल क्लोराइड। इथाइनाइल जनरल में क्या कहेंगे? अल्काइनाइल हैलाइड्स, अल्काइनाइल। तो ये अब मैं सम अप यहां पर करूंगा ताकि आप जहन में आपकी बात कर रहे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पे हमने क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वजूद में आ गई, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नाम लिखने के साथ साथ आपको पता चलेगा ये किस किस्म का अल्काइल हैलाइड है या हेलो अल्केन है। एक है जिन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। ये कौन से हो गए? जहां पर हैलोजन एटम है अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और वहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड, यानी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलो अल्केन्स, मोनो हैलो, इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल। दूसरा टाइप है एलाइल हैलाइड्स। कौन सा टाइप है? एलाइल हैलाइड्स। ये कौन से हैं? जहां पर हैलोजन अटैच है टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मगर वो कार्बन अटैच है टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 डबल बॉन्डेड, है ना। इसी तरह से तीसरा मैंने बता दिया बेंजाइल हैलाइड्स। याद है आपको? बेंजाइल हैलाइड, जहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच है डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग और उसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हमारा हैलोजन है ना। इसी तरह से चौथा टाइप आ गया एराइल हैलाइड्स। और कौन सा? जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है टू द एराइल रिंग, एराइल मींस बेंजीन रिंग, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। जब हैलोजन डायरेक्ट अटैच है किसको? बेंजीन रिंग को, एराइल हैलाइड्स। इसके बाद एक और मैंने बताया विनाइल हैलाइड्स, है ना। विनाइल हैलाइड्स कौन से हैं? जहां पर हैलोजन एटम अटैच है डायरेक्टली टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, ओपन चेन डबल बॉन्डेड कार्बन, है ना। और हम क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड्स। ये एक्चुअली अल्किनाइल हैलाइड्स। एक्चुअली कौन से हैं? अल्किनाइल। आप समझ गए? अल्कीन, अल्किनाइल हैलाइड्स।
ये एक्चुअली कौन से कंपाउंड हैं? अल्किनाइल। यहाँ पर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, उसी डबल बॉन्ड पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच है। अल्किनाइल, इन्हें विनाइल हैलाइड्स भी कहते हैं। इसी तरह से छठा टाइप जो आ गया दैट इज अल्काइनाइल। ये जो लास्ट में हमने पढ़ा अल्काइनाइल हैलाइड्स, जहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है हैलोजन एटम। ठीक है ना? ठीक है ना? तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हो गई, दो तरह की, है ना? एक क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक ना? दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और मैं आपको बता दूं कि जब हम अल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स, ये दोनों हमें पढ़ने हैं, अल्काइल हैलाइड्स एंड, जैसे अभी आपको पता चला अल्काइल हैलाइड्स आर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, इसमें प्राइमरी हैलो अल्केन, सेकेंडरी हैलो अल्केन और टेरिशरी अल्केन, हैलो अल्केन तीनों आते हैं अल्काइल हैलाइड में। तो अल्काइल हैलाइड जब हमें पढ़ना है तो सिर्फ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। मैंने कल भी बताया जो डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स या ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनमें कुछ कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, जिसमें एक कंपाउंड DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, या जिसमें एक कंपाउंड BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिस इस्तेमाल करान एज इंसेक्टिसाइड, महर दवा जिस त्रावान ना, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आजकल हम क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं एज सॉल्वेंट, एज, पहले वो एज एन एनेस्थेटिक इस्तेमाल होता था, पहले वो क्या होता था? एज एन एनेस्थेटिक इस्तेमाल होता था। तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और अल्काइल हैलाइड्स के बाद हमें एराइल हैलाइड्स पढ़ना है। कौन सा? और ये जो बाकी बीच वाले हैं इनके साथ हमारी जान पहचान फिलहाल नहीं रहेगी, इन्हें हमें डिस्कस नहीं करना है एज पर आवर सिलेबस। सिर्फ ये दो हमें पढ़ने हैं, अल्काइल हैलाइड्स एंड, पहले हम अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे उसके बाद एराइल हैलाइड पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए हमारा इसमें जो दूसरा टॉपिक है दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्या है? आपने पिछले साल नॉमेनक्लेचर पढ़ा है 11th क्लास में, डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ अगर आप किताबें खोल देंगे तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में फिर से नॉमेनक्लेचर दिया हुआ होता है। वो सिर्फ इसलिए कि नॉमेनक्लेचर के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामुकम्मल है। जिसको नॉमेनक्लेचर ना आता हो तो उसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा कंपाउंड्स आ रहे हैं, इन सबों का नाम तो आदमी ज़बानी याद नहीं रख सकता है। इसलिए अगर हम नॉमेनक्लेचर जानते हैं तो हम किसी भी कंपाउंड का नाम खुद दे सकते हैं, फिर हमें नाम ज़बानी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं दे आर एक्चुअली मोनो हैलो अल्केन्स। क्या है? मोनो, इसे ज्यादा वाज़ह हो जाता है, मोनो हैलो अल्केन्स। यानी अल्केन्स में से हमें क्या करना है? वी हैव टू रिमूव वन हाइड्रोजन and have to introduce one halogen atom in place of that hydrogen. Then it will become monohaloalkane. यानी अल्केन में एक हाइड्रोजन एटम हमें इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि अल्केन जो है उसकी जनरल फार्मूला है CnH2n+2, है ना? CnH2n+, अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे ये बनेगा CnH2n+1, है ना? जो हाइड्रोजन बाहर निकला उसके बदले हम क्या लाएंगे? एक्स हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? हैलोजन के लिए, ठीक है ना? और इन हैलोजन्स की एक और जनरल फार्मूला हम लिखते हैं RH। क्या लिखते हैं? क्यों? RH जो है ना, RH इज द फार्मूला ऑफ अल्केन। R है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है। अब जब वो हाइड्रोजन हम वापस देंगे तो ये अल्केन बनेगा, है ना? तो इसलिए अल्केन की जनरल फार्मूला क्या है? अब हम हाइड्रोजन निकाल के क्या लाते हैं?
हैलोजन। तो अल्काइल हैलाइड जो है इसकी क्या फार्मूला बन गई, RX क्या बन गई। हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नॉमेनक्लेचर जो है दो तरह का है, आप जानते हैं। एक को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, है ना, कॉमन सिस्टम ऑफ। दूसरा है उसे कहते हैं IUPAC सिस्टम। ये दोनों सिस्टम आप जानते हैं। एक का क्या कहते हैं IUPAC सिस्टम, दूसरे को क्या कहते हैं, आप सब यहीं पर है ना। कॉमन सिस्टम में जब हमें नाम देना होता है इन कंपाउंड्स को, तो इनका सिंपल नाम है अल्काइल हैलाइड्स। इन कॉमन सिस्टम these compounds are named as alkyl halides. They are named as, इसका मतलब क्या हुआ, you have to write down the name of the alkyl group। पहले आपको क्या करना है, अल्काइल ग्रुप का, फिर उसके आगे क्या लिखना है, हैलोजन का नाम। जो हैलोजन होगा उसका नाम लिखना है एज हैलाइड, एज इस तरह से आप समझेंगे। सपोज ये कंपाउंड है CH3Cl, तो यहां पर कौन सा अल्काइल ग्रुप है ना, CH3 कौन सा ग्रुप है। पहले आप इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे मिथाइल, फिर किसका नाम लिखना है, हैलोजन का। हैलोजन कौन है, क्लोरीन है ना, तो ये क्लोरीन क्या बनेगा, क्लोराइड। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। आप समझ गए। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये है कंपाउंड CH3CH2Br, ठीक है ना। अब इस कंपाउंड का नाम बताइए क्या है ना, कौन सा अल्काइल ग्रुप है ना, C2H5 इथाइल। आप क्या लगी बुथ नाम, शाबाश, वेरी गुड। मुश्किल किन मुश्किल से आख रसन आप बे ब्रो पानस CH3CH2CH2I CH, हाँ क्या सना, प्रोपाइल। सारी से आख मुतफिक, प्रोपाइल वनो, शाबाश। बे फिर वनो प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है गौर, प्रोपाइल। वह लिखो ब्या कंपाउंड तुझ खुशी खतर CH3CHI CH3 वनो अत नाव, हाँ ना डाइमिथाइल। यह कुछ ग्रुप छ, हाँ बताइए, शाबाश। हमें पहले क्या करना है, अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है। जरा देखो ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल है ना, क्योंकि 1 2 और 3 है ना, तो ये भी प्रोपेन में से निकला है, प्रोपाइल, ठीक है ना। तो इसका नाम भी क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड, है ना। आपने ऊपर वाले कंपाउंड को भी नाम दिया प्रोपाइल आयोडाइड, नीचे वाले को भी नाम दिया प्रोपाइल। इन दो में कोई फर्क है कि नहीं है ना, फर्क क्या फर्क है, पोजीशन ऑफ आयोडीन। यस, पोजीशन ऑफ। पहले वाले में आयोडीन कहाँ है, फर्स्ट पे, यहाँ कहाँ पे है, तो इसका मतलब है कोई फर्क होगा ना, नाम में होना चाहिए ना। अगर हम नाम में कोई फर्क नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं कहूंगा प्रोपाइल आयोडाइड, आगे ये बनाएंगे, आधा ये कंपाउंड बनाएंगे, तो कंपाउंड तो एक ही बनाना है। तो इसलिए ये जो प्रोपाइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, इनके नाम में थोड़ा फर्क है, डिफरेंस है इनके नाम में, जो आप भूल गए हैं। भूल गए कि नहीं भूल गए, जरा याद दिलाओ खुद को। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है और ये कौन सा है, शाबाश। हाँ वो ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। मगर कॉमन सिस्टम में जब हम अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं, बताइए फिर से हाँ ठीक है, बता उमर, तुम भी कुछ कहो ना। लाइट हाउस वालों ने तुम्हारी बिल्कुल बोलती बात कर दी है। नहीं नॉर्मल है, ऊपर वाला नॉर्मल है क्योंकि एंड वाले कार्बन पे है, बीच वाला आइसो है, पढ़ा है ना। ये है नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड और ये कौन सा है, ये है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। आपने पढ़ा है नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है ना, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना ये याद रखें, मैं फिर बाद में कुछ और कंपाउंड बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। उनके भी आपको कॉमन नेम देने होंगे
उनके भी क्या करने होंगे, कॉमन नेम देने होंगे और बाद में आईयूपीएसी नेम। इससे पहले मैं बताऊंगा कि आईयूपीएसी सिस्टम में हम नाम कैसे देते हैं, ताकि हम कुछ कंपाउंड लिखिए, हम इनका काम नॉमेनक्लेचर जो है दोनों नॉमेनक्लेचर साथ साथ पढ़ेंगे, कॉमन भी और ये बात याद रखिए, हम दोनों नॉमेनक्लेचर की भी इस्तेमाल करते हैं। हम कॉमन सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, आईयूपीएसी सिस्टम भी इस्तेमाल। हालांकि आपको आजादी है, आप सिर्फ आईयूपीएसी सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम पढ़ाने वाले और किताब वाले वो दोनों सिस्टम इस्तेमाल, इसलिए जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको भी क्या करना है, दोनों सिस्टम फॉलो करने हैं, ठीक है ना। हालांकि सिलेबस के मुताबिक सिर्फ आईयूपीएसी सिस्टम है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए आईयूपीएसी सिस्टम में हम कैसे नाम देते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम में हम, अगर मैं आपको बता दूं, दे आर नेम्ड एज हैलो अल्केन्स, इतना भी काफी है। दे आर नेम्ड एज हैलो, आप समझ गए। यहां पर हमने क्या लिखा था, दे आर नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड्स, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम फिर हैलोजन का नाम, है ना। अब यहां क्या करना है, पहले हैलोजन का नाम फिर अल्केन का नाम, हैलो। और ये बात भी आपको मालूम है, जब हम फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं तो वो सबस्टिट्यूएंट होता है, वो क्या बनता है, अगर बाद में होता तो फंक्शनल ग्रुप होता। तो ये क्या है यहाँ पर, यानी हैलोजन जो है दैट इज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट एंड इट इज नेम इज रिटन इन द प्रीफिक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन। अब क्या करना है, देखना है कि पेरेंट अल्केन कौन है, पेरेंट अल्केन कौन है, उसके प्रीफिक्स पे, उसके प्रीफिक्स मींस बिगिनिंग, उसके प्रीफिक्स पे क्या करना है, हैलोजन का नाम लिखना है किस तरह से, एज हैलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, समझ गए ना। और एक और काम करना है, एंड यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम एंड अदर सबस्टिट्यूएंट्स। और कोई दूसरा सबस्टिट्यूएंट भी होगा, अगर कोई दूसरा सबस्टिट्यूएंट भी, उसकी पोजीशन भी हमें क्या करनी है, मेंशन करनी है। आपको क्या करना है, पोजीशन है, दे आर नेम्ड एज, आपने लिखा ना ये, दे आर नेम्ड एज हैलो अल्केन्स एंड द पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम एंड द पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम इज इंडिकेटेड बाय ए नंबर, बाय ए suitable नंबर। मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं क्या लिखूंगा, तो suitable नंबर कौन सा होता है, उसके लिए आपको रूल्स पहले से मालूम है, अगर आपको याद होगा मैं याद दिलाऊंगा, आपने पढ़ा है। suitable का नंबर मतलब ये है कि जब आप हैलोजन एटम की पोजीशन मेंशन करने जाओगे तो आपको कोशिश करनी है उस कार्बन की सबसे लोवेस्ट नंबर आ जाए, जिसपे उसको कहते हैं लोवेस्ट नंबर रूल ना, लोवेस्ट नंबर रूल, वहां से नंबरिंग करनी है जहां से उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर आएगा जिस पे हैलोजन होता है, ठीक है ना, लोवेस्ट नंबर उसे ठीक। और कभी कभी ये आप देखेंगे अगर एक से ज्यादा हैलोजन होंगे या एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट होंगे, एक से ज्यादा, कभी कभी आप देखोगे इन हैलो अल्केन्स में वहां पर मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच जब होता है उसको भी हम एज सबस्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, सपोज अगर आपका कंपाउंड इस तरह से CH3 CH3 CH2 CH2Cl, इस तरह से आपका कंपाउंड है ना। इस कंपाउंड में क्लोरीन तो सबस्टिट्यूएंट है ही, और यहाँ पर ब्रांच मिथाइल ग्रुप है ना, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, नॉमेनक्लेचर में ये भी क्या है, सबस्टिट्यूएंट है। इसलिए वहां पर हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है ना, याद है आपको लॉन्गेस्ट चेन तो ये है ना, 1 2 3 4। नंबरिंग कहां से करेंगे, अगर यहां से करेंगे 1 2 3 और 4 है ना, तो फिर कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल है, तो सबस्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या आ गई, 1 और 3। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो फिर कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 4 पर क्लोरीन। अब हमें सोचना है, क्योंकि नंबरिंग में हमें आजादी है, आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। अब हमने देखना है रूल के मुताबिक कि हमें नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, यहां से करनी चाहिए या
यहां से करनी चाहिए या यहां से करनी चाहिए। तो इसके लिए रूल ये है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। क्या है? आपने पढ़े पिछले साल लोवेस्ट सेट ऑफ, इसका मतलब सेट ऑफ लोकेंट्स हमें दो आ गए। यहां से नंबरिंग करते करते 1 और 3, यहां से नंबरिंग करते करते 2 और 4, 2 और 1 और 3, 2 और लोवेस्ट सेट कौन है? 1 3 है ना। तो वो यहां से आ गया ना, इसलिए यहां से नंबरिंग होगी। कहां से? यहां से। पेरेंट कंपाउंड कौन है? 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गया ब्यूटेन, है ना। अब ब्यूटेन पे क्या है? कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन है, 2 पर मिथाइल ग्रुप है। ये दो सबस्टिट्यूएंट हैं, दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट हैं। आप रूल जानते हैं, जब कंपाउंड पे दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट होते हैं, पहले वो सबस्टिट्यूएंट लिखना होता है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। आप ये जानते हैं ना, इसलिए ये रूल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पहले से पढ़े हैं। तो पहले क्लोरो आएगा या मिथाइल आएगा? तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा फिर? 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। और ये नंबर है, ये वहीं पे लिखने होते हैं जहां पर हमें जरूरत पड़ी। जहां जरूरत ना हो वहां पर नंबर अगर हम ना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम आप जान गए, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। समझ गए ना? क्लियर है ना बात? 1 क्लोरो 3 मिथाइल। अब देख लीजिए इस कंपाउंड, यहां पर कंपाउंड लिखा हुआ है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताइए। इस कंपाउंड का है ना, यहां पर एक कार्बन है ना कंपाउंड में, एक कार्बन वाला कंपाउंड जो होता है उसे मीथेन कहते हैं ना। तो इस तरह से यहां पर मीथेन पे क्या है? क्लोरीन है। तो ये कंपाउंड जो है इसका आईयूपीएसी नेम है क्लोरो मीथेन। 1 वर्ड, ये 2 वर्ड लिखे जाते हैं। अल्काइल हैलाइड जो है ना, when these compounds are named in common system as alkyl halides, this alkyl halide is written in 2 words, alkyl अलग, halide। पर यहाँ पर आईयूपीएसी सिस्टम में क्या किया जाता है? 1 वर्ड, क्लोरोमीथेन। कहीं पे कोई डैश वगैरह, क्लोरो अलग और मीथेन अलग नहीं है, दोनों एक वर्ड है, क्लोरोमीथेन। तो ये कंपाउंड कौन सा है फिर? है ना ब्रोमो। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ईथेन, है ना। और इसी ईथेन पे ब्रोमीन है, ब्रोमो ईथेन। यहां पर नंबर लिखने की जरूरत, क्योंकि ब्रोमीन इस वक्त इस कार्बन पे है। देख लीजिए, हम ब्रोमीन को हटा के इस कार्बन पे भी ला सकते हैं। यहां पर ब्रोमीन की पोजीशन चेंज, बताइए, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो सकती है। इस वक्त इस कार्बन पे है, ये इस कार्बन पे भी हो सकता है ना। मगर जब इस पे है तो ये कार्बन का है, कार्बन नंबर 1। अब अगर ब्रोमीन को हटा के हम इस कार्बन पे लाएंगे तो फिर ये बनेगा कार्बन नंबर 1। इसलिए ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करने से इस कंपाउंड के नाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्रोमो, ब्रोमो। ये कंपाउंड वुचो, ये अपनी कस कार्बन छ 3 छना, 3 वोलस छ वना, ओ गुरु 3 वोलस छ वना, प्रोपेन। गो पेरेंट छ प्रोपेन छ ना। मुझे सबस्टिट्यूएंट कुछ आयोडीन, क्या बने ना, आयोडो प्रोपेन बना। मगर इस आयोडीन पे वुचो वुचनस ये कार्बन पे पता कैसे दिया पे, ये कैसे दिया पे, ये दिया पे छ, ये कैसे कार्बन छ 1। अगर ये पे आस तो मतलब पोजीशन चेंज करने से पेन नाव से फर्क। ये पोजीशन चेंज करने से नावस पे फर्क आसे तेल जरूरी पोजीशन हाल, तेल चल पोजीशन हाल में वर। तो इसलिए इस कंपाउंड में आपको आयोडीन की पोजीशन जाहिर करनी है। तो क्या बनेगा नाम? 1 आयोडो प्रोपेन। एक 1 वर्ड लिखना है, 1 आयोडो प्रोपेन। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है ना बेटे, 2 आयोडो प्रो। अब मैं कुछ और कंपाउंड्स लिखूंगा, आप उनके कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नाम भी देंगे, ठीक है ना? भाई ठीक है ना? क्या करेंगे आप कॉमन नेम भी देंगे और आप रूल समझ आ गए ना? रूल समझ, सिंपल रूल पहले ये है, कॉमन सिस्टम का क्या है? दे आर नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड्स।
IUPAC नेम का क्या है, दे आर नेम्ड एज हेलो। हाँ, बस करना क्या है, कॉमन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हमें एक अल्काइल ग्रुप पहचानना है। अल्काइल ग्रुप की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। अगर हम अल्काइल ग्रुप को पहचानने में कामयाब हो गए तो हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, ऊपर हेलाइड ऐड कर लेंगे तो नाम हासिल हो गया। आप देख लीजिए, मैं एक और कंपाउंड लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। एक कंपाउंड, मैं पहले कंपाउंड लिखूंगा, ठीक है ना, उससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूं, ठीक है ना। एक और कंपाउंड यहाँ पर है, मैं दो नाम, इसके दो नाम हमें लिखने हैं, कॉमन नेम भी, और इसलिए मैं इतनी जगह यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। आप कंपाउंड बनाइए, आप इस तरह जगह छोड़िए, तो इतनी जगह हमें छोड़नी है जिसमें दोनों नाम आ सकेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद एक और कंपाउंड लिखता हूँ,